اور اب آپ کو بتائیں کہ سپار کو پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ روانہ کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ HS-1 چین سے خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی موجودگی میں لانچ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہ روانہ کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی میں بھی مدد دے گا۔ پاکستان کا یہ مشن قومی خلائی پالیسی اور ویژن بیس 47 کا اہم سنگ میل ہے۔ سال 2025 میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہوگا۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ ہی دیر میں یہ روانہ کیا جائے گا۔ سپار کو پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ روانہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 خلا میں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ سیٹلائٹ کو چین سے روانہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ سپار کو آج پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 خلا میں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے نمائندے علی حسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ علی بتائیے گا، کچھ ہی دیر میں یہ روانہ کیا جائے گا؟ دیکھیے 3 منٹ سے کم وقت رہ گیا ہے۔ جیوکوان لانچ سینٹر جو کہ چین میں واقع ہے، وہاں سے سیٹلائٹ جو ہے لانچ کر دیا جائے گا۔ ایک بڑا یہ میز پاک چین دوستی کا یہ ثبوت ہے کہ اب HS-1 جو ہے سیٹلائٹ ہائپر اسپیکٹرل اس کو بھیجا جا رہا ہے۔ اچھا تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا یہ اسپیکٹرل امیجنگ کام کیسے کرتی ہے، اس کے بعد مزید تفصیلات ہم آن اسکرین دیکھ ہی سکیں گے۔ اس میں ایسے امیجنگ کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں جو مخصوص جو کلر بینڈز ہیں اس سے زیادہ ڈیفیشنسی پہ ہیں کام کرتے ہیں، جس سے بڑی اہم تصاویر ہمیں ملتی ہیں، ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ ایسے وقت میں جب سبسٹینس جمع کرنے ہوں، ان کی شناخت کرنی ہو، کہاں پہ ہریالی ہے، کہاں پہ پودوں کی جو ہے وہ وہاں پہ خوش سالی ہوتی چلی جا رہی ہے، جغرافی حالات میں بدلاؤ کیسے آ رہا ہے، اور جو خطرات ہمیں لاحق ہیں جہاں پہ گلیشیئر پگھلنے، ان سب کی یہ امیجنگ کرے گا، اس پہ کام شروع کر دے گا۔ لانچنگ کے بعد تقریباً 2 ماہ تک ان آربٹ ٹیسٹنگ کا کام ہوگا، اس کے بعد یہ سیٹلائٹ جو فعال کر دی جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم جو ہے گزرتا جا رہا ہے اور بہت جلد یہ سیٹلائٹ جو ہے عنقریب خلا کے لیے روانہ کر دی جائے گی۔ حسن اب سے کتنی دیر میں یہ روانہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیے ٹائمر جو بہت تیز سے گزرتا چلا جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی تیاری مکمل ہے۔ 4 کے لگ بھگ جو انجینئرس ہیں پاکستان کے جن کا تعلق سپارکو سے، وہ وہاں پہ موجود بھی ہیں اور تمام چیز کو باریک بینی سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ ٹائم جو ہے شاید 1 منٹ کے قریب رہ گیا، اس کے بعد اچانک سے جو ہے اگنیشن آن ہوں گے اور اس کے بعد خلا کی طرف سیٹلائٹ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 خلا میں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ سیٹلائٹ کو چین سے روانہ کیا جائے گا۔ آج 19 اکتوبر کو پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 خلا میں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ سیٹلائٹ کو چین سے لانچ کیا جائے گا، جہاں پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی موجودگی میں لانچ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد یہ سیٹلائٹ روانہ کر دیا جائے گا۔ اسپار کو حکام نے بتایا ہے کہ HS-1 سیٹلائٹ قدرتی آفات جیسے سیلابوں، لینڈ سلائڈز اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی بروقت پیش گوئی اور نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ سیٹلائٹ ارضیاتی خطرات، انفراسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی کے شعبوں میں بھی راہیں کھولے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مشن پاکستان کی قومی خلائی پالیسی اور ویژن 2047 کے تحت ایک اہم سنگ میل ہے۔ لانچ کے ساتھ کوئی کھڑا مت ہوئیے پلیز، لانچ کے وقت ہم بیٹھے رہیں گے۔ 30 سیکنڈز۔ آپ سب کو وائبز محسوس ہو رہی ہیں۔ 20 seconds to launch. 20秒。准备点火。准备点火。10、 10, 9, 8, 7、 7, 6、 6, 5, 4、 4 3、 3 2 1 Ignition. Lift off. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان پاکستان زندہ۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا یہ پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ہے جو کہ خلا میں بھیجا گیا ہے۔ سیٹلائٹ HS-1 چین سے خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی موجودگی میں یہ لانچ کیا گیا ہے۔ اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں اور اب یہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اسے خلا میں بھیج دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی بلند کیے گئے۔遥测信号正常，东风飞行正常。
पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज दिया गया है। सैटेलाइट को चीन से रवाना किया जा चुका है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज दिया गया है। सैटेलाइट को चीन से लॉन्च किया गया है, जहां पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और अब उसे खला में भेज दिया गया है। सुपार्को हुकाम ने बताया है कि HS-1 सैटेलाइट कुदरती आफात जैसे सैलाबों, लैंडस्लाइड्स और माहौलियाती तब्दीलियों की बर वक्त पेशगोई और निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। ये सैटेलाइट अर्जियाती खतरात, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के शोबों में भी नई राहें खोलेगा। आपको बताएं कि माहिरीन का कहना है ये मिशन पाकिस्तान की कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 के तहत एक अहम संग मील है, जो मुल्क को जदीद साइंसी और टेक्नोलॉजी तरक्की के नए दौर में दाखिल कर देगा। आपको ये भी बताएं कि इस साल 2025 में खला में भेजे जाने वाला HS-1 पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। इससे कबल EO-1 जनवरी 2025 और KS-1 जुलाई 2025 में कामयाबी से खला में भेजे जा चुके हैं और दोनों इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। मज़ीद जानेंगे, अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अली हसन, पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में भेज दिया गया है। देखिए, रवा साल ये तीसरी सैटेलाइट है जो कि खला में भेजी गई है और ये बहुत बड़े माइलस्टोन है और उसको दिखाने के लिए स्पार्को में लाइव स्क्रीनिंग का तमाम भी किया गया था। ये सैटेलाइट जो है सैलाबों, लैंडस्लाइड, दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मददगार साबित होगी। CPEC मंसूबों में जो जोग्राफी खतरात दाहक हैं उनकी निशानदेही करने के लिए भी माविन रहेगी। और ये पाकिस्तान का जो मिशन है बेसिकली अपना कौमी खलाई पॉलिसी विजन 2047 का एक अहम संग मील है। इसके अलावा जो है ये सैटेलाइट फसलों की सेहत, मट्टी में जो नमी पाई जाती है और आबादी के निज़ाम से मुताल्लिक तफसीली मालूमात भी फराहम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग है और शहरी मनसूबाबंदी के लिए भी ये नई राह खोलेगा। ये जो अभी सैटेलाइट लॉन्च हुई है अभी ऑर्बिट में आज पहुंच जाएगी। उसके बाद 2 माह तक इन ऑर्बिट टेस्टिंग होगी। डाटा इस दौरान आता रहेगा लेकिन उसको एनालाइज किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके 2 माह मुकम्मल होने के बाद ये सैटेलाइट मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा। इससे पहले भी जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी कुछ माह पहले, उसका भी काम डाटा इमेजिंग था। वो पूरे पाकिस्तान में जो तब्दीली आ रही थी, जहाँ ग्लेशियर पिघल लेते हैं, सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद जो हालात में बदलाव आया था जोग्राफी, उन सबको मॉनिटर कर रहा था, उससे भी डाटा रिसीव हो रहा है। और अभी चीन में जो टीम बैठी हुई है पाकिस्तान की, स्पार्को से जिनका ताल्लुक है, वो अभी पूरी चीजें जो है बारीकी से उसका जायजा ले रही है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे जब लॉन्च किया गया। इस्लामाबाद में भी लाइव स्क्रीनिंग का तमाम किया था, वहाँ पर भी चीजें देखी जा रही हैं। थोड़ी देर बाद जो यहाँ के डायरेक्टर होंगे वो मीडिया से बात करेंगे और मजीद बताएंगे कि बेसिकली हाइपर स्पेक्ट्रल जो इमेजिंग जो होती है उसमें कैमरा के अंदाज के इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका बेसिकली पर्पस क्या होता है, जो कि इंसानी आँख देख नहीं पाती, वो शायद तमाम जो है इस सैटेलाइट के जरिए जो है रिसीव होगा डाटा की सूरत में। अच्छा अली, इससे पहले भी जो 2 सैटेलाइट भेजे गए हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं? जी बिल्कुल, इससे पहले EO-1 जो है जनवरी 2025 में और KS-1 नामी सैटेलाइट जो है खला में रवाना कर दी गई थी और दोनों मुकम्मल तौर पे फाल है। इससे पहले मैं बता रहा था कि एक सैटेलाइट का काम जो था वो कम्युनिकेशन गैप्स को खत्म करना था। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है आगे की, जाने दुनिया बढ़ रही, उसी अंदाज से पाकिस्तान भी उस सफर के उस राह पे चल पड़ा है। और दूसरी सैटेलाइट जो थी वो डाटा इमेजिंग थी, जिसमें मुख्तलिफ जो सिनेरियो बेस्ड पाकिस्तान के जो हालात में बदलाव आ रहा है, खासतौर पर CPEC की मैं बात कर रहा हूँ कि CPEC का जो काम हो रहा है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है ये सैटेलाइट्स। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज दिया गया है। सैटेलाइट को चीन से रवाना किया गया है। आपको बताएं कि आज 19 अक्टूबर को पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज दिया गया है। सैटेलाइट को चीन से लॉन्च किया गया है, जहां पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में उसके लॉन्च की तैयारियां की गई थी और अब उसे खला में भेज दिया गया है। अब से कुछ देर बाद डायरेक्टर भी गुफ्तगू करेंगे और मजीद उसके बारे में आगाह करेंगे। सुपार्को हुकाम ने बताया है कि HS-1 सैटेलाइट कुदरती आफात जैसे सैलाबों, लैंडस्लाइड्स और माहौलियाती तब्दीलियों की बर वक्त पेशगोई और निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। ये सैटेलाइट अर्जियाती खतरात, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के शोबों में भी नई राहें खोलेगा। माहिरीन का कहना है कि ये मिशन पाकिस्तान की कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 के तहत एक अहम संग मील है, जो मुल्क को जदीद साइंसी और टेक्नोलॉजी तरक्की के नए दौर में दाखिल करेगा। आपको ये भी बताएं कि साल 2025 में खला में भेजे जाने वाला HS-1 पाकिस्तान का ये तीसरा सैटेलाइट है। इससे कबल EO-1 जनवरी 2025 और KS-1 जुलाई 2025 में कामयाबी से खला में भेजे जा चुके हैं और दोनों इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं और कामयाबी से
काम कर रहे हैं। ये मिशन पाकिस्तान की कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 के तहत एक अहम संग मील है जो मुल्क को जदीद साइंसी और टेक्नोलॉजी तरक्की के नए दौर में दाखिल करेगा। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में भेज दिया गया है। Three, two, one. Mission. Lift off. नाराए तकबीर. Allahu Akbar. नाराए तकबीर. Allahu Akbar. पाकिस्तान. पाकिस्तान. पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज दिया गया है। सैटेलाइट को चीन से रवाना किया गया है। सैटेलाइट की रवानगी के वक्त नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। स्पार्को ने आज 19 अक्टूबर को पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज दिया है। सैटेलाइट को चीन से लॉन्च किया गया है, जहां पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां की गई थीं और अब सैटेलाइट को खला में भेज दिया गया है। स्पार्को हुकाम ने बताया है कि HS-1 सैटेलाइट कुदरती आफात जैसे सैलाबों, लैंडस्लाइड्स और माहौलियाती तब्दीलियों की बरवक्त पेशगोई और निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। ये सैटेलाइट अर्जियाती खतरात, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के शोबों में भी नई राहें खोलेगा। माहिरीन का कहना है कि यह मिशन पाकिस्तान की कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 के तहत एक अहम संग मील है। 3, 2, 1. Mission. शफात अली डायरेक्टर स्पार्को ने हमें ज्वाइन किया है। शफात साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में भेज दिया गया है, कितनी बड़ी कामयाबी देख रहे हैं आप? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च हो चुका है। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि बहुत सारी खिदमत अंजाम देगा, जिसमें हम ज़मीन में मुशाहिदा कर सकेंगे और इमेजरीज ले सकेंगे, और साथ में ना सिर्फ हम इमेजेस ले सकेंगे बल्कि हम ज़ेरे ज़मीन सतह के अंदर जो हमारे मिनरल्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, मादनियात हैं, वो सब चीज़ें भी हम इसमें इंशाल्लाह आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो एक तारीखी लम्हा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने सैटेलाइट लॉन्च कर लिया है और ये अभी अपने सफ़र में ऑर्बिट की तरफ रवा दवा है और इंशाल्लाह कुछ ही देर में इंशाल्लाह ये स्टेबल हो जाएगा और फिर इसको वक्त के साथ ये इंशाल्लाह इसकी 2 से 3 महीने में इसकी प्रॉपर कमीशनिंग भी हो जाएगी। अच्छा शफात साहब, ये बताइएगा कि कब तक ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा और डेटा रिसीव होना शुरू हो जाएगा? देखिए, जैसे ये है कि अभी ये अपने सफ़र में ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, तो जैसे ये ऑर्बिट में पहुंच के फिर इसकी कैलिब्रेशंस होती हैं और इसकी बाकायदा ऑर्बिट कमीशनिंग होती है। तो ये तकरीबन 2 से 3 महीने लेंगे, जिसमें जाके ये प्रॉपर आपके पूरे ऑर्बिट के अंदर वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा और उसके हमें तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद इसके हमें इमेजरीज मिलना शुरू हो जाएंगी। तो होपफुली इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के बाद हम इस सैटेलाइट से जितनी सर्विसेज हैं जो कि डिफरेंट एरियाज डोमेन्स में लाया करती हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, अर्बन प्लानिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और मिनरल्स की आइडेंटिफिकेशन है, अंडरग्राउंड मिनरल्स की आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह उससे हम इससे फिर ये फायदे इससे हासिल करेंगे। शफात साहब, माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक ये डेटा कितना सूदमंद साबित होगा उससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान भी है ना एक वन ऑफ द अफेक्टेड कंट्रीज है माहौल की जो तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो जिस तरह से हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है, इसमें मल्टीपल स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं जो कि बहुत सारे बैंड्स को कवर करता है, एनर्जी बैंड्स को, जो कि लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी तक के बैंड्स होते हैं। तो जो हमारे माहौलियात में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके अगेंस्ट क्या क्या अपने मिटिगेशन मेजर्स लेने हैं, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करके हम इनको बताएंगे। तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और दूसरे इदारे जो हैं उनके ऊपर वो उनको एक्शंस लेके इसको किस तरह से हम इससे बच सकते हैं और किस तरह से हम इन तब्दीलियों से बेटर इक्विप हो सकते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह इस पे वर्किंग करेंगे। डायरेक्टर स्पार्को शफात अली हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज दिया गया है। सैटेलाइट को चीन से रवाना किया गया है। आपको बताएं कि पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज दिया गया है। सैटेलाइट को चीन से लॉन्च किया गया, जहां पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां की गईं और अब सैटेलाइट को खला में भेज दिया गया है। HS-1 सैटेलाइट कुदरती आफात जैसे सैलाबों, लैंडस्लाइड्स और माहौलियाती तब्दीलियों की बरवक्त पेशगोई और निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा।